Hello dear students, welcome to Sharp Learner। आज आम देखा विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय रासायनिक समीकरण कहले कौन, रासायनिक समीकरण को किपरि आम समतुल करवा यह विषय देखा। रासायनिक समीकरण कहले आम प्रथम कौन बुझा बा रासायनिक प्रतिक्रिया कहले आम प्रथम कौन बुझा। ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବ ଯାହାକି ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରୁ ନଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କିପରି ଯେ ଏଠାରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଛି ବୋଲି। ତାହା ପାଇଁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତକୁ ଜଳେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା, ତ ବାହାରେ କ'ଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳେଇଲେ ତାହା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପକ ଏକ ପାଉଡରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଆମେ ଲିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେବା ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି PbNO3 ତାପରେ 2, ତାପରେ ନେବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ଲିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ବାହାରିବ କ'ଣ ନା ବାହାରିବ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଏବଂ ଲିଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍। PbI ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ତ ବାହାରିବ କ'ଣ ନା ଲିଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ବାହାରିବ, ତା ସହିତ ବାହାରିବ ଆମର ପୋଟାସିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠାରେ କି ଲିଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଥିବ, ତ ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଯାହା ଥିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଙ୍କକୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରାଇବା ତ ବାହାରିବ କ'ଣ ନା ବାହାରିବ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ବାହାରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ନିର୍ଗମନ ହେଲା। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିବା ଯେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବ। କିପରି ଜାଣିବା ନା ଏହିସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଅଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଯେଉଁ କରୁଥିବା ସେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀର ଯଦି ଆମେ ବେସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା, ବେସ୍କୁ ଅର୍ଥ ତଳକୁ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବ ତାର ଯଦି ଆମେ ବେସ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଟଚ୍ କରିବା ବା ଛୁଇଁବା ତେବେ ଆମେ କିଛି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକରଣକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା। ସମୀକରଣକୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଏ ନା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେହି ସମୀକରଣକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ଆଚ୍ଛା, ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବସ୍ତୁତଃ ସମାନ। ଓକେ, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ବସ୍ତୁତଃ ସମାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଥାଏ ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଇଡ୍ ଥାଏ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ବାହାରିଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଏଠା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରକ ହେଉଛି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ଏଠାରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତିକାରକ, ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ। ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ଆସେ, ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ଆଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲେ ଆମେ କହୁଛେ, ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଆସେ ତେବେ ସେହି ପ୍ରକାର ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ କହିପାରିବା। ଏହା ସହିତ କେବଳ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ହେଲେ କୁହାହେବନି, ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଠି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ 2ଟି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 2ଟି ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ପ୍ରତିକାରକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ପରମାଣୁ ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ଅଛି। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ କହିପାରିବା। ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସ୍ତୁତଃ ସମାନ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ ବା ତାକୁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ସ୍କେଲିଟାଲ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
देखो उदाहरण एठारे दिखाई मैग्नेशियम अम्लजान सहित प्रतिक्रिया कर बाहर मैग्नेशियम ऑक्साइड। एटा देखो मैग्नेशियम गोटे अच्छी एटी मैग्नेशियम गोटे अच्छी तो ठीक अच्छी कि देखो ये अम्लजान अच्छी दुईटी किंतु ये अम्लजान अच्छी गोटे। तो यह हूँ एक प्रकार असमतुल समीकरण। यापर देखु आम रासायनिक समीकरण क्या कहवा रासायनिक प्रतिक्रिया को सेमानकर मौलिक और यौगिक मानकर प्रतीक द्वारा लिखा रासायनिक समीकरण कहुए। तो रासायनिक प्रतिक्रिया रे जो मौलिक और जो यौगिक माने भाग नहीं था सेमानकर प्रतीक द्वारा जदि से रासायनिक प्रतिक्रिया को आम लिखा ताकू रासायनिक समीकरण बोली कहुए। एथिरे आस देखो शब्द समीकरण जदि से रासायनिक प्रतिक्रिया रे जो जो शब्द व्यवहार हुए ताकू जदि आम व्यवहार करवा ताकू शब्द समीकरण कहीपर जमीन कि मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन बाहर मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नेशियम ऑक्सीजन होती प्रतिकारक पार्श्व जहाँ इंग्लीश रे आम रिएक्टेंट्स बोली कहीपर मैग्नेशियम ऑक्साइड जहाँकि उत्पाद पार्श्व जहाँ आम प्रोडक्ट बोली कहीपर। यहाँ देखो समतुल रासायनिक समीकरण प्रथम आसला वस्तुत्व संरक्षण नियम। पिले तुम्हें नवम क्लास रे पढ़ीच वस्तुत्व संरक्षण नियम बा लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास विषय पढ़ीच। से आम कौन पढ़ते ना प्रतिक्रिया हेबा पूर्वर प्रतिकारक पार्श्वर मोट ओजन जहाँ प्रतिक्रिया हेला परे बा केमिकल रिएक्शन हेला परे उत्पाद पार्श्वर वस्तु मध्य ताहा रही थाए यह वस्तुत्व संरक्षण नियम बोली कहुए। जमीक देखु एठारे मनकर उद्यान सहित जदि अम्लजान प्रतिक्रिया करिब तो बाहरुछि आमर जल अणु बाहरुछि। तो एठा देखो आमर उद्यान अणु जो अच्छी उद्यान अणुर एठारे वस्तुत्व केते ना 4U। यू अर्थ कौन यू अर्थ हूँ यूनिफाइड मास जहाँ को आम इंग्लीश रे कहूचे यूनिफाइड मास। ओके जहाँ को आम आणविक वस्तुतल सॉरी परमाणिक वस्तुतल आम कहीपर परमाणिक वस्तुतल आम कहीपर। तो गोटे उद्यान परमाणुर ओजन हूँ 1U से हिसाब से जदि H2 नेबी ये हूँ H2 हूँ गोटे अणु H हूँ गोटे परमाणु जदि H2 नेबी तो ये आसो के ना 2U आसो जदि 2H2 नेबी तो टोटाल H केतरा आसुची ना 4टा आसुची जदि 4टा आसो तो ओजन केते आसो ना 4U आसो। ओके तो तेणु H2 जगह 4U पकाला। O2 देखो आमर जो अम्लजान अच्छी अम्लजान जो परमाणु अच्छी देखो O जो लिखुची ये अम्लजान परमाणु कहब O2 लिखिले अम्लजान अणु बोली कहब। तो अम्लजान परमाणुर ओजन हूँ आमर 16U सिनी अम्लजान अणुर केते आसो ना ये O दुईटा अच्छी तो 16 दुणे 32U। ओके तो O2 हूँ 32U से O2 जगह 32U पकाला। तापर देखो 2H2O ए 2H2O देखो जदि मुझे गोटे H2O कथा चिंता करी गोटे H2O कथा जो चिंता करी H2 रे केते आउछि ना 2टा H आउछि तो ये 2 और हूँ 16 सो 16 केते आसला ना 18 आसला। तो गोटे H2O रे आउछि 18 ये 2H2O को होइछि तो 18 18 36 तो ये 36। तो देखो प्रतिकारक पार्श्व रे 32 4 36 अच्छी आ डाहाण पार्श्व बा उत्पाद पार्श्व 36U अच्छी। तो ये आम कहीपर जे वस्तु संरक्षण नियम इम्प्लीमेंट हो पार्छ बोली आम कहीपर। तो वस्तु संरक्षण जदि हो पार तो ताहा मध्य समतुल रासायनिक समीकरण हो पार। द्वितीय हूँ मौलिकर परमाणु संख्यार सामान आसवा पड़ो अर्थात प्रतिकारक पार्श्वर परमाणु संख्या आ उत्पाद पार्श्वर परमाणु संख्या सामान। यही उदाहरण को देखूँ एठारे बाम पार्श्व उद्यान परमाणु 4टी अच्छी डाहाण पार्श्व उद्यान परमाणु 4टी अच्छी अम्लजान परमाणु प्रतिकारक पार्श्व 2टी अच्छी आउ उत्पाद पार्श्व अम्लजान परमाणु 2टी अच्छी। तो यहीपरि भाव में रासायनिक समीकरण को आम समतुल कर समतुल कर पद्धति। ओके तो रासायनिक समीकरण जदि दिखाई जमीक देखो गोटे उदाहरण दिखाई आयरन प्लस जल बाहर कौन ना उत्पाद हिसाब से बाहर Fe3O4 आ बाहर उद्यान गैस बाहर। तो यह हूँ एक समीकरण किंतु यही समीकरण टी आमर असमतुल बा स्केलेटल इक्वेशन आकार रे अच्छी। तो देखो आपको आम किपरि समतुल करवा बहुत सहज पद्धति अटे। समस्ते वीडियो को लगातार देखो स्किप करूँ ना कंटिन्यू देखो जहाँद्वारा आपंकर कनसेप्ट क्लीयर हो पार। सोपान 1 देखो कौन देछि ना सोपान 1 देछि प्रतिकारक पार्श्व जो सब उपादान थाए एवं उत्पाद पार्श्व जो उपादान थाए से उपादान गुड़िक आम कौन करवा ना ताको बॉक्स कर लिखा ताको एपरि भाव बॉक्स कर लिखा। आउ जिन मन रखी तो जिते आम रासायनिक प्रतिक्रिया को लिखुचे
समीकरण माध्यम तो प्रतिकारक पार्श्व जिते गुड़ी उपादान थाए से उपादान गुड़ी को आम प्लस चिन्ह द्वारा अलग करवा। ठीक से भाव में उत्पाद पार्श्व जो सब उपादान गुड़िक थाए से गुड़िक आम प्लस चिन्ह द्वारा अलग करवा एवं प्रतिकारक पार्श्व और उत्पाद पार्श्वर मझे एक तीर चिन्ह आम व्यवहार करवा जो तीर चिन्हटी की प्रतिकारक उत्पाद आड़ को मुह कर। तो यही प्रकार आम लिखिपर। तो सोपान एक कौन देला ना प्रतिकारक पार्श्व जिते गुड़ी उपादान अच्छी और उत्पाद पार्श्व जिते गुड़ी उपादान अच्छी से गुड़ आम बक्स करके रखा जी एफ को ये बक्स कर रखाई जल को बक्स कर रखाई Fe3O4 को रखाई H2 को बक्स कर रखाई। तो ये आम बक्स करके रखा। सोपान 2 कौन देती सोपान 2 देती जे प्रतिकारक पार्श्व जिते गुड़े मौलिकर परमाणु अच्छी और उत्पाद पार्श्व जिते गुड़े मौलिकर परमाणु अच्छी ताकू इंडिविजुअल रूप लेख और से परमाणु संख्या भी लेख। जमीक एटार देख Fe अर्थ आयरन आयरन देखो यहाँ हूँ प्रतिकारक पार्श्व। तो प्रतिकारक पार्श्व आयरन केतोटी अच्छी ना गोटे अच्छी उत्पाद पार्श्व केतोटी अच्छी ना ये 3टी अच्छी। ओके ठीक से भाव में प्रतिकारक पार्श्व H केतरा अच्छी ना 2टी अच्छी उत्पाद पार्श्व H केतरा अच्छी ना 2टी अच्छी। तो ठीक अच्छी तापर देखो प्रतिकारक पार्श्व O केतोटी अच्छी अम्लजान केतोटी अच्छी ना गोटे अच्छी आ उत्पाद पार्श्व केतोटी अच्छी ना 4टी अच्छी। तो ये प्रकार आम एक टेबुलेसन करदे जोटा कि सोपान 2 अटे। सोपान 3 देखु सोपान 3 कौन देला ना जो यौगिक सर्वाधिक परिमाणर परमाणु थाए प्रथम आम ताकू समाधान करने चेष्टा करवा। तो देखो यही जो प्रतिक्रिया रे सबुठारु अधिक परमाणु थिबा यौगिक किए अटे आयरन ना जल ना Fe3O4 ना H2 ओबियसली आसीबो Fe3O4 आसीबो। ये होची माने अधिक परमाणु थिबा यौगिक। तो आम प्रथम आपको आम समाधान करने चेष्टा करवा। तेणु देखो यहाँ लिखा है Fe3O4 हूँ अत्यधिक परमाणु थिबा यौगिक। तापर आम कौन करवा देखो ये जो Fe3O4 रे सबुठारु अधिक परमाणु कौन अच्छी ना O रो अच्छी। तो O को आम बाछिबा। एबे देखंतु लेफ्ट हैंड साइड रे बा प्रतिकारक पार्श्व रे O केतोटी परमाणु अच्छी एठी आम लिखिथिले O अच्छी एठी गोटे आ उत्पाद पार्श्व अच्छी 4टी। तो आम कौन करवा ना प्रतिकारक पार्श्व थिबा जो अम्लजान जो परमाणु अच्छी से आम 4 गुणिबा। जदि 4 गुणिबा तो प्रतिकारक पार्श्व 4टी अम्लजान परमाणु आसीजिवो आउ उत्पाद पार्श्व 4टी अच्छी जहाँकि समतुल होइजिवो। तो सेथिपई एठी 1 गुण 4 इक्वल 4 आसिला। तो देखो जदि आम ओर जदि आम 4 जदि गुणिया को अच्छी तो आमको कौन गुणिया पड़ो ना पूरा H2 रे 4 गुणिया पड़ो। जमी देखो ये लिखाई Feटा आयरन आयरन रहा जो H2ओटा अच्छी से 4 गुणिकी लिखाला आउ बाकी सब सेम टू सेम लिखाई कौन परिवर्तन होइनी। यहाँ हूँ सोपान 3। तापर सोपान 4 देखंतु सोपान 4 कौन देती अन्य मौलिकर परमाणु को आम समतल करवा। तो अधिक परमाणु थिबा परमाणु को आम समाधान कलापर अन्य मौलिकर परमाणु को समतल करा पड़ो। जमीक ऑक्सीजन है कौन अच्छी ना हाइड्रोजन अच्छी। एबे देखंतु हाइड्रोजन रे केतोटी परमाणु थिला एठी देखंतु एठी बाम पार्श्व बा प्रतिकारक पार्श्व अच्छी 4 H2 अर्थ 8टी अच्छी और डाहाण पार्श्व केतोटी अच्छी ना डाहाण पार्श्व अच्छी 2टी अच्छी। ओके तो उत्पाद पार्श्व अच्छी 2टी प्रतिकारक पार्श्व अच्छी 8टी। तो ये कौन करा पड़ो ना उत्पाद पार्श्व जितोटी उद्यान अच्छी से आम 4 गुणिया पड़ो। ओके तो आम 4 गुणवा। तो देखो से कौन कराला प्रतिकारक पार्श्व अच्छी 8टी उद्यान परमाणु एठी अच्छी 2टी तेणु 2 रे 4 गुण है तेणु आसला 8। से देखो प्रतिक्रिया को आउ थे किपर लिखाला आयरन वाटर लिखाला Fe3O4 को Fe3O4 लिखाला ये H2 पाखे आउ 4 गुण है ये प्रकार रिएक्शन है। आपर आम कौन करवा देखो आउ किए बड़ाका रहा जोटा कि समतुल ही ना रहा आयरन Fe। देखो उत्पाद पार्श्व आयरन अच्छी 3टी प्रतिकारक पार्श्व अच्छी गोटे। तो आमको कौन करा पड़ो ना प्रतिकारक पार्श्व आमको 3 गुणा पड़ो। तो एबे कौन करवा ना 3 गुणवा देखो ये 3 गुणिकी लिखाई। तो रिएक्शन कौन आसो ना 3Fe4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये प्रकार आसला। यापर आउ थे टे चेक कर दियो भूल अच्छी ना ठीक अच्छी। देखो आयरन अच्छी बाम पार्श्व 3टी एठी अच्छी 3टी एठी H केतरा अच्छी ना 8टी एठी H केतरा अच्छी 8टी बाम पार्श्व O केतरा अच्छी ना 4टी उत्पाद पार्श्व अच्छी 4टी। यही भाव में सामान होगा। जब सामान होगा तापर सोपान 6 आम कौन करवा ना बक्स गुड़ी को बाहर करदे जो बक्स को आम प्रथम नहीं आम बाहर करदे। तो यही भाव में बक्स बाहर करके आम लिखा।
या पर कौन करवा सोपान 7 हूँ ये जो मौलिकर परमाणु गुड़िक आम जो नहीं सेमानकर अवस्था विषय में आमको लिखा पड़ो जमीक जदि गैसीय अवस्था जदि कौन मौलिक परमाणु अच्छी ताप आम जी व्यवहार करवा जदि गोटे वस्तु तरल अवस्था अच्छी ताप आम एल व्यवहार करवा एल नामक लेटर जलीय द्रवण जदि आकार अच्छी ताप आम ए क्यू शब्द को व्यवहार करवा जदि कठिन अच्छी ताप आम एस शब्द को व्यवहार करवा तो सहीपरी भाव में देखूँ यही समीकरण को किपरि लिखा जाइए आयरन हूँ कठिन अवस्था अच्छी तेणु आयरन पाखे एस लिखाला जल जोटा कि एठारे गैसीय अवस्थार जल को आम व्यवहार करें से जी लिखाला Fe3O4 जोटा कि सॉलिड आकार बाहर और H2 जोटा कि गैसेस स्टेट रे बाहर यहीपरि भाव में आम लिखिपर तो पिला माने आज ये था बाकी आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा जदि वीडियो तुमको पसंद आसता है निश्चित रूपे लाइक कर निज सांग मान भर शेयर कर जो मैंने सब्सक्राइब करना से सब्सक्राइब कर आउ तुम मैंने जदि चाह तेरे आम ऑफिस रो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जहाँ हूँ कि 8328070797 यही नंबर आप जब कांटेक्ट करेंगे तेज आपको यार PDF सेंड कर दिया कि वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे क्लास 10th ओडिशा नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी सहित टेलीग्राम ग्रुप अच्छी जब आप सही लिंक रे जब आप क्लिक करेंगे तो आमर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप रे आप जॉइन हो पारे ओके जहाँकि एकदम फ्री अटे सेठ आपको डेली अपडेट मिल यार ये नोट्र जो PDF अच्छी आगामी समय भी जो भी नोट्र PDF आसो तार आपको पठे दि जाव। धन्यवाद।